हेलो दोस्तों, अगर डिक्टेशंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, बेल के साथ दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाली डिक्टेशंस टाइम टू टाइम समय पे मिल सकें। थैंक यू। Start. Plaintiffs' appellants are in the regular second appeal against the judgment passed by the learned first appellate court, partly reversing the judgment of the trial court. Full stop para. In the considered view of this court, comma, questions which require determinations are colon para. First, whether the remaining partners on the death of a partner can exclude the legal heirs of the deceased partner from succeeding to his/her share in the assets, properties of the firm and profits earned from use of that property, question mark para. Second, whether the legal heirs of a deceased partner are entitled to claim value representing the share of the deceased partner in the immovable properties of the firm on the date of the death of the deceased partner, irrespective of the fact that the surviving partners delayed the distribution of the property, question mark para. Plaintiffs' appellants are claiming to be heirs of late Shrimati Kailash Vati Khanna, who was partner in the partnership firm, comma, namely, comma, Messrs. SK Industries, Batla Road, Amritsar, full stop para. Initially, she was partner to the extent of 30% when the firm started in the year 1965, full stop. However, as per the last partnership before the death, she was partner to the extent of 25%. Wide partnership deed dated 1/4/2003, and on this aspect both the courts have recorded finding which is not subject matter of challenge before this court, full stop. Para. As per the partnership deed dated 1/4/2003, exhibit P7, comma, it was provided that in the event of death of any of the parties, partnership shall not ipso facto dissolve, full stop. Clauses 10 and 12 of the partnership deed, which are relevant for the decision of the case, are extracted as under colon para, that in the event of death of any of the parties, comma, the partnership shall not ipso facto dissolve, full stop. The remaining partners may admit the legal heirs or representatives of the deceased partner, and such legal heirs or representatives shall step into the shoes of the deceased partner, full stop para, that in the event of death or retirement of any of the parties, comma, the surviving partners shall have absolute power to operate upon the bank accounts and particularly to withdraw the bank balances, and such withdrawals shall be duly accounted for in the books of the firm, full stop. The retiring partners or the legal heirs of the deceased partner shall have no right or power to prevent or hinder the operation of the bank account or withdrawals of the bank balances, full stop para. Shrimati Kailash Vati Khanna died on 3/5/2005, full stop.
plaintiffs claiming to be heirs filed a suit with the following prayers para. First, order dissolution of the firm Messrs. SK Industries para. Second, direct the defendants to render the accounts of the said firm para. Third, partition of the properties with building constructed thereon owned by the firm fourth, restraining the defendants from alienating the property para. As per partnership deed dated 1/4/2003, there were 5 partners and late Srimati Kailash Wati Khanna was partner to the extent of 25% over. तो फ्रेंड्स ये लगभग 92-93 की स्पीड का डिक्टेशन है, ठीक है। इसमें कुछ पैरा और फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स वगैरह आए थे, इसलिए थोड़ी सी स्पीड डाउन हुई है इसकी, ठीक है। थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत हो जाती है, ओके। तो फ्लक्चुएशन कोशिश तो यही की है कि अच्छे से बना रहे। और कैलाश वाटी खन्ना कैसे बनेगा? कैलाश बनेगा के अबव द लाइन के, एल अपवर्ड और सर्किल, ये कैलाश हो गया। वाटी नॉर्मल बनेगा, वे का स्ट्रोक और टी में ई की वॉवल, खन्ना के लिए के और एन का स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। और के को काट दीजिए, खन्ना ख के लिए। और एसके इंडस्ट्रीज़ की स्पेलिंग है ESSKAY, ठीक है, ये एब्रीविएशन नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे कोई इंडस्ट्री होगी, उसका केस होगा, तो इसको नॉलेज में रखना आपको ज़रूरी है। एसके क्या है? ये एसके एब्रीविएशन है या जो स्पेलिंग हमने बताई वो है, ठीक है। अब वहाँ के लोकल लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। एसके इंडस्ट्रीज़ हो गया। बाटला रोड BT अपवर्ड L, बाटला रोड अमृतसर कैसे बनेगा? अमृत के लिए MR, जैसे मोर बनाते हैं अबव द लाइन, मोर T और सर्किल लगा के अपवर्ड R कर दीजिए, अमृतसर हो गया, ठीक है। बाकी और कुछ इसमें तो है नहीं, कैलाश वाटी खन्ना ही रिपीट हुआ है। और जब भी नाम रिपीट होते हैं ना, तो उसके लिए एक तरीका होता है। कैलाश वाटी खन्ना आपने पहली बार बना दिया, तो अगली बार आपको केवल कैलाश बनाने की ज़रूरत है, बस और कुछ नहीं। तो कैलाश आप बना दोगे, आपको पता चल जाएगा कि आगे कैलाश वाटी खन्ना पूरा है, ठीक है। इससे टाइम बचेगा, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका स्ट्रांग होगा। नाम के साथ यही खेल करा करिए, ठीक है। बाकी और तो कुछ इसमें है नहीं। और रही बात, देखिए फर्स्ट अपीलेट कोर्ट, पिछले मैटर में कैपिटल था, इसमें स्मॉल है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट अपीलेट कोर्ट के लिए कि इसमें स्मॉल बनेगा कि वो बनेगा कैपिटल बनेगा, वहाँ के स्टेनो खुद ही अलग अलग तरीके से लिखते हैं और जजेस जजमेंट को पास करते जाते हैं। तो इसमें कोई भी हैरानी या परेशानी की बात नहीं है। आप फर्स्ट अपीलेट कोर्ट को कैपिटल ही लिख सकते हैं, स्मॉल की वजह से कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होइएगा, ओके। तो चलिए ये हो गया है। और कुछ, और जिनको डैश लगाना है प्लेंटिफ्स डिफेंडेंट्स या प्लेंटिफ अपीलांट्स में, तो उसमें डैश लगा सकते हैं वो लोग, ठीक है। ये गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है। और कुछ है इसमें, नाम वगैरह के पहले आता है कॉमा, मतलब जैसे बाटला रोड कॉमा अमृतसर, ये सब कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता रहे, जब भी कोई नाम या एक्ट के बाद कोई सन आता है, ईयर आता है, तो ऑफ द एक्ट कॉमा 1982, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेसर्स SK इंडस्ट्रीज़ आएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर बाटला रोड आएगा, फिर कॉमा लगेगा, फिर अमृतसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नाम को कॉमा से हटाया जाता है, मतलब अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, क्योंकि कई नाम एक साथ आते हैं। और डेजिग्नेशन में भी नाम के बाद कॉमा, उसके बाद डेजिग्नेशन आता है, याद रखिएगा ये सब, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर होता है और थोड़ी सी चीज़ें याद करने से काम चल जाता है, ठीक है। तो और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है तो आप रोमन में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट अगर आता है तो आप रोमन में लिख सकते हो उसको। और अगर पॉइंट आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो स्मॉल रहेगा, रोमन में स्मॉल रहेगा, ठीक है। और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड को आप न्यूमेरिकल में भी लिख देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गलत नहीं काटा जाएगा वो। अब भाई अलग बात है कि वो लोग अब जिद पकड़ लिए कि नहीं हमको अब रोमने चाहिए, हमको थर्ड और फर्स्ट मतलब 1 और ST नहीं चाहिए है, तो बात अलग है, वो किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक प्रॉपर तरीका जो है वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो इसको कमेंट करके बताइएगा कैसा डिक्टेशन लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्लक्चुएशन बताइएगा और रखनी है कि नहीं रखनी है। मिलेंगे अगली डिक्टेशन में, थैंक यू सो मच।